हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकी ट्रेड। हिंदी दर्शकों के लिए आप सभी को द विकी ट्रेड पर स्वागत है। अभी फर्स्ट हम इंग्लिश में शुरू करेंगे और हिंदी दर्शकों के लिए हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, उस टाइम स्टैम्प पे जाइए और आपको हिंदी में जो आज का डेली मार्केट एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगा। So it's time for English session now. So for our daily market analysis, we will go to as usual Nifty 50 15-minute chart. So let me expand it. So first we will analyze what happened today. Okay, see. This was this red candle, 15-minute red candle was our first candle. This was the closing point of yesterday, and near to that you can say it in flat opening, and market goes sideways. See, you can see that it is here negative in 0.18% only. So you can say for all over the day, most of the time it was sideways, and from 2 p.m. It was in the downward direction. So whatever we analyzed yesterday that in the yesterday session, in the yesterday means market hour, market already broke our this resistance point. See, this is the highest point of this red candle, already broke, and again by this morning star, this was a beautiful candlestick pattern happened yesterday, created yesterday. So this formed a quite good support zone. So see, market today was somehow bearish, maybe it is minus 0.18%, but a little bit bearish was there. But this was the our support zone, which is 23,730 630, 23,630 nearly. So market doesn't come to near to this. Okay, market closes here near the 23,686. market closed down today. So this is now market is in our no trading zone. So according to our intraday analysis, market in the next one session, tomorrow session, market must have to break in the buying 23,800, and after 23,800, if market sustains there, then we can expect a buying up to 23,850 and 900, whatever the target we analyzed yesterday. 50-50 movement we can keep the target, but if we going towards the selling side, it must have to break our support zone, that is 23,630. After breaking the 23,630, we can expect a selling zone downward to it. Okay, so but in between 23,800 to 23,630, market is in our now no trading zone. We cannot as a retail trader, we should not do any type of trading in this range. Now we will go to our day trading zone, day chart. In day chart we can see here again, this is our 23,300. this is our very good support zone. Okay, so market is quite higher than our support zone, approximately 700 points higher than our support zone. So in positional trading, similar thing what we have analyzed yesterday, that we can expect our first target 23,900, and after 23,900 we can go up to the 24,000, then 24,200, and in the downward section, if this green candle, see this this green candle formed, it is the day candle of yesterday. So if the lowest point of this green candle, that is 23,423,
if market comes below to the 23,420, then we can expect a selling up to our this safe support zone 23,700. So this was for Nifty 50. And for Nifty Bank 15-minute chart, let me expand. Similar kind of pattern, but see something different from the Nifty 50. It opens in gap up and closes near to the opening. Okay, near to the opening market. Nifty Bank close here. So if tomorrow, if it breaks this highest point, whatever it is the highest in today's session, that become our nearest resistance, that is 50,520. So above 50,520, if market sustains, then we can go towards our next target. But if it breaks this, see, market opens here in gap up, and this gap, it fills it in the second 15-minute candle chart. So second 15-minute candle, it recovers, it fill this gap. So if it goes down this gap, it is the now new resistance here, means one type of support zone here. Sorry for that, it is now support here. So if it breaks this 50,200, so we can planning for our sell, and up to a target of this one 50,000, and for safe zone we can go for 50,020 accurate. But in between this range 50,530 to 50,200, we can go for no trading zone. This 100 point we can go for no trading zone. Above this we can go for buy, and below this level we can go for sell up to our next this target, and below to this target we can go for here 49,890, again a just 100 point gap. Then after that 890, then market should go for a huge fall like 49,660, again a 250 point target. Now go to the daily chart. In Nifty Bank, see, in the daily chart, market sustains here above our yesterday's candle. Market sustains, so we can expect that market will move higher and higher in some next trading session, because though market is red, but still it managed to sustain itself above the closing point of yesterday's. So we can analyze that. Our analysis is saying that market is in no mood to coming downward. So this is, see, this point, third, fourth, okay, this fifth, they are just in a support zone, and market is about to break this support zone in a clear manner. So if here it breaks this support zone in a clear manner, that means, see, this is a great candle, and we can say that it clearly breaks a zone. Okay, here is a red candle, it is a healthy red candle. We can say that it clearly breaks down any type of zone. So this is the support zone. Okay, see how much candle bounce back from this point. Okay, so this is clearly a support zone, and if market breaks this support zone in a healthy manner, then we can expect up to a, our first target is 51,030, and our next target is in a positional manner. Okay, and our next target is 51,550. After that we will see again, it will be our next target, it is 52,000. Okay, so
step by step we can go from for upwards. So first, in the next 1 or 2 session, we need to see whether market in the case of daily chart, whether market breaks this support zone in a healthy manner or not. If it breaks and sustain, then we will go for the buying side. Otherwise, we have to go again downward side, and this the lowest point of this candle, that is 49,482. Market must be if market goes down to this lowest point, that is 49,482, we can again see a downfall in the bank nifty. So दिस वॉच फॉर इंग्लिश सेशन। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी सेशन के लिए। सो हिंदी सेशन के लिए फर्स्ट हम जाएंगे निफ्टी 50 के 15 मिनट कैंडल चार्ट की तरफ। आज हम देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप में तो खुला, जस्ट छोटी सी गैप अप, और अगेन हम इसको फ्लैट भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब मार्केट खुला तो वो साइडवेज ही रह गया, इतना ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं हुआ। बट आफ्टर 2 PM 2 बजे के बाद ये एक छोटा सा फल आया, और हम यहाँ देख सकते हैं कि -0.18% का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है मार्केट के तरफ। एंड ये क्लोजिंग हुआ तो मार्केट जब कल क्लोज़ हुआ था ना, उसी के आसपास ही क्लोज़ हुआ। तो हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया 23,800 के ऊपर से अगर मार्केट सस्टेन कर लिया तो हम आगे की तरफ, आगे ऊपर की तरफ देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट 50 पॉइंट का रखेंगे, 23,850 देन 23,900, जैसे कि हमने ये बात कल भी कही थी। 50 का टारगेट रखकर हम चलेंगे आज। पर रिटेल ट्रेडर आई एम सेइंग दैट, मैं ये बात सिर्फ एक रिटेल ट्रेडर के लिए ही कह रहा हूँ कि आप 50 के चढ़ाव लेकर ऊपर तक जाइए। पर अगर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर वो नहीं क्रॉस कर पाई और क्रॉस किया भी इसको, ये जो रेजिस्टेंस है 23,800 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस किया भी, पर मार्केट अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई तो फिर हमको ये डाउनवर्ड में देखना पड़ेगा। और डाउनवर्ड में देखिए आप, ये कल एक ग्रीन कैंडल हुआ था, फिर एक छोटा सा हम इसको अप एंड ऐसे से इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख सके आप। सो सी, ये एक बड़ा, ये एक ग्रीन कैंडल, ये एक इंडाइसिसिव कैंडल, ये अगेन एक रेड कैंडल है। अगर मार्केट इसी में कल ख़त्म हो गया, अगर मार्केट आवर थोड़ी और ज़्यादा होती तो मेरा एनालिसिस ये कहता था कि मार्केट यहीं से फिर से नीचे आने की कोशिश करता, पर मार्केट ख़त्म हो गया तो ये पैटर्न भी यहीं से ख़त्म हो गया। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये देखिए, ये हमने एक पैटर्न भी बोला था कि ये भी एक अच्छा सा पैटर्न है, जस्ट इसी पैटर्न का रिवर्स है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट और ये इसका सपोर्ट पॉइंट, ये एक ही लाइन है, इसके नीचे से हम एक सेलिंग देख सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि 23,630 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है, निफ्टी आ जाती है, तो हम सेलिंग के तरफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और वहाँ से हमारा ये वाला टारगेट होगा 23,530 के आसपास होगा हमारा ये टारगेट। ओके, तो ये था हमारा 15 मिनट के लिए, जो इंट्राडे के लिए 15 मिनट चार्ट। अब हम डे चार्ट की तरफ जाएंगे। डे चार्ट की तरफ ये देखिए, मार्केट आज का जो डे कैंडल वो तो रेड है, पर वो जो हमारा क्रूशियल सपोर्ट जो है इसके कहीं ज़्यादा ऊपर है, नियरली 700 पॉइंट का ऊपर है। तो अगर ये हम पोजिशनल की तरफ, आज है फरवरी 5। सो अगर हम इसी महीने की बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो
अगर यहीं से इसका जो आज का जो हाईएस्ट पॉइंट है, आज का जो हाईएस्ट है वो आज का रेजिस्टेंस है। अगर कल ये रेजिस्टेंस टूट गया और मार्केट सस्टेन कर लिया तो हम आगे की तरफ सोचेंगे, और ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 23,900 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। 23,900 अप टू 200 पॉइंट्स आगे के ऊपर की तरफ, और इसके बाद हम चलेंगे 24,200 के आसपास। पर अगर मार्केट क्रॉस हो गया, अगर मार्केट नीचे चला गया, तो ये जो कल का जो हमारा ग्रीन कैंडल था उसके नीचे उसका लो पॉइंट है 23,423। इससे नीचे 23,420 ले सकते हैं आप। इसके नीचे से हमको सेलिंग दिखना पड़ेगा, और सेलिंग की तरफ हम जाएंगे, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो पोजिशनल में फिर से 23,300 टच करेंगे। सो इसके बाद हम जाएंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट कैंडल की तरफ। 15 मिनट चार्ट में हम भी वही दिखेंगे कि जहाँ निफ्टी बैंक शुरुआत हुई, क्लोजिंग भी वहाँ हुई, और ये जो कल का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग, जो ये गैप था, जो दूसरे वाला 15 मिनट कैंडल था, वो इसी गैप को फिल कर लिया। तो ये एक हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस अब क्रिएट हो चुका है, और ये हमारा एक छोटा सा सपोर्ट भी क्रिएट हो चुका है। अगर ये वाला जो हमारा आज का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हम ये कह सकते हैं कि ये है 50,523, और इसको 50,530 के लिए लिया। तो 50,530 के ऊपर से अगर निफ्टी बैंक सस्टेन कर लिया तो हम ऊपर के साइड में बाई की तरफ दिखेंगे। नहीं तो अगर ये फिर से गिरा, क्योंकि ये जो लास्ट मिनट में हमको तो एक गिरने वाली मार्केट नज़र आ गई, तो अगर गिरा तो ये 50,200 के नीचे से हम इसको सेलिंग की तरफ एनालाइज करेंगे, सेलिंग की तरफ देखेंगे, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला 50,000 की तरफ। कम से कम ये एक 200 पॉइंट का फासला होगा, 200 पॉइंट का हम यहाँ अचीव कर सकते हैं। पर इसके रेंज में मार्केट अगर ट्रेडिंग हुआ 50,530 और 50,200, इसी 150 पॉइंट में मार्केट घुमा तो ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन में रह गया। सो इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग, और अगर सेलिंग करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये 49,700। ओके, सो नेक्स्ट हम जाएंगे निफ्टी बैंक के डे चार्ट की तरफ। ये डे चार्ट भी आप देखेंगे कि यहाँ एक सपोर्ट जोन, यहाँ मार्केट आके बाउंस बैक हुआ, फिर से यहाँ आया टच होकर बाउंस बैक हुआ, फिर से यहाँ आया टच होकर बाउंस बैक हुआ, और फिर यहीं से ये ब्रेक कर लिया। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। ओके, ऊपर का चार्ट के लिए ये एक सपोर्ट जोन है, और नीचे के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट निफ्टी बैंक का जो मार्केट है वो अच्छा है, वो जो पिछले वाला डे कैंडल था उसके ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग बना हुआ है, पर ये इतना अच्छा भी कैंडल नहीं है। जैसे कि हम पिछला वाला जो कल का जो कैंडल था, ये देखिए ये कितना एक हेल्दी कैंडल है, ग्रीन कैंडल, और ये इसमें दम है, पर इस कैंडल में दम नहीं है। तो ये जो जोन है, अगर इस जोन का अगले 1-2 सेशन में हम देखेंगे कि ये अगर अच्छे तरीके से ब्रेक कर लिया, जैसे ये वाला कैंडल अच्छे वाले से ब्रेक कर लिया, और नहीं तो इसी जोन के ऊपर से ही हमारा कैंडल फॉर्मेशन हो गया, तो हम बाइंग की तरफ ज़रूर जाएंगे, और हमारा ये वाला जो है नेक्स्ट टारगेट होगा 51,000, और इसके ऊपर से हम जाएंगे 51,550 के टारगेट पर अगर मार्केट यहीं से नीचे आया तो फिर से वही बात, ये ग्रीन कैंडल के नीचे 49,482 के नीचे हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। सो ये था आज का डेली मार्केट एनालिसिस। बाय बाय।